is converted to electricity. Okay? So, in a chemical reaction, there are two compartments. I will show you. There are two compartments. Each compartment consists of solution of electrolyte and the electrode, a metal rod, and this is called salt bridge, about which we shall study in this class. These are the two compartments. These are known as half cell or electrode. This one is anode. This is half cell 2. This is also known as electrode, and actually it is cathode. Okay? So I have sketched a simple electrochemical cell. It has two compartments. Each compartment contains a rod known as electrode and a solution. A solution is there. Solution of electrolyte. There are two compartments. Each compartment contains electrolyte, solution of electrolyte, and electrode, that is a rod. A rod or wire of conductor metal. Okay? The left part of the cell is called anode. It is fixed. In electrochemistry, we mainly based on assumptions, or you say conventions. Little rule is there. So, as per convention, left hand electrode is always negative. It is called anode, and at this electrode oxidation takes place. It is fixed. You have to obey. Everyone has to obey. Anode is left. Left part is anode. Its sign is negative, and at this electrode oxidation takes place. Okay? Right part of the cell, right part is cathode. It is called cathode. Right part is cathode. Its sign is positive. Cathode is denoted by a positive sign, and at this electrode reduction takes place. So you can memorize like this, that right is reduction. R for right, R for reduction. So reduction at right electrode. Then obviously oxidation will be on left electrode. So I have given you
much information about the electrochemical cell. Point 1. Electrochemical cell is a device in which electricity is produced at the cost of chemical reaction. Electrochemical cell is a device in which electricity is produced at the cost of chemical reaction. Number 1. Number 2. Electrochemical cell has two compartments, anode and cathode. Always anode is left, and at this electrode oxidation takes place. And cathode is right, it is positive, and at this electrode reduction takes place. This convention should be kept in mind while studying this electrochemistry lesson. Always fix your brain. If you find at some place that something different is written, you will stick on your concept and you say that word is wrong. This is correct only, because it is this convention is given by IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, and everyone of this science fraternity must obey this convention. Any question till now? Okay, so after this diagram, I should write definition of electrochemical cell. Electrochemical cell is a device in which electricity is produced at the cost of chemical reactions. Okay? And this electrochemical cell has two compartments, as I said, left and right. Left is anode minus, right is cathode plus. Here oxidation takes place and here reduction takes place. Okay? It's convention, and all should be abide by this convention, that left is anode, right is cathode. So what happens? Let's take here metal M. So M solid at anode. M solid will give N plus aqueous plus N electron. It is oxidation. And this electron will make it negative. Electron released by the electrode will make it negative. And this electron will flow through its wire and go to cathode. So, at cathode, suppose M plus aqueous absorbs M electron and gives N solid. This is reduction. So because it is absorbing electron, it is consuming electron, it means it is positive. This is the cell reaction at anode and cathode. If you wish to write cell reaction, you have to cancel this electron. So we have to multiply it by M and this by N.
दिस वन फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन के नंबर से सेकेंड को, सेकेंड के नंबर से फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये m इंटू एन इलेक्ट्रॉन राइट में, और यहाँ m इंटू एन इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में है। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन्ड मालूम है आपको। आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े हैं, बैलेंसिंग पढ़े हैं रिएक्शन में, वहाँ क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन्ड, ये कैंसिल हो जाएगा। We will get m into m solid plus n into n plus aqueous is equal to m into n plus aqueous plus n into n plus aqueous. This is called overall cell reaction. Cell reaction. M and N may be same, may be different. ये डिपेंड करता है। कहीं पर दोनों मेटल की वैलेंसी ऑल्दो डिफरेंट मेटल हैं, कभी कभी इनकी वैलेंसी सेम हो सकती है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम एक केस ये है कि जहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये हुआ हाफ सेल रिएक्शन। किसी इलेक्ट्रोड पर जो होता है इसे कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन। इसको भी कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन। और हाफ हाफ को जोड़ कितना होता है? 1 ना, तो दोनों को जोड़ दिए थे, फुल सेल रिएक्शन। अब 1 मिनट देख लीजिए, मन में कुछ प्रश्न आता है तो पूछिए। किसी के मन में कोई भी प्रश्न आता है तो पूछो। नया क्वेश्चन समझ गए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जिसमें केमिकल रिएक्शन होगा, और वो कौन रिएक्शन होगा? रिडॉक्स रिएक्शन। फिक्स्ड है, याद रखिए। उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं होगा, सोल्वोलाइसिस नहीं होगा, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी चेंज होगा दैट विल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब केमिकल रिएक्शन से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। इस सेल के 2 कंपार्टमेंट होंगे, एक एनोड एक कैथोड। बाय कन्वेंशन एनोड लेफ्ट होगा और कैथोड राइट होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ये सच्ची घटना है, इसमें कन्वेंशन नहीं है। कैथोड पर रिडक्शन, मतलब जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लेफ्ट रखेंगे, जहां रिडक्शन होगा उसको हम राइट रखेंगे। ठीक है, ऐसे रिएक्शन होगा। इस तरह से हम रिएक्शन लिख सकते हैं और फिर उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। अब बोलिए, एनी क्वेश्चन? किसी के मन में? कोई नहीं बोलता है भाई, इसका मतलब कुछ नहीं समझते हो या सब कुछ समझते हो? कौन बात सही है? चल, तो हम लोग अब आते हैं, हाउ विल यू नो, कैसे तुम जानोगे कौन कैथोड है और कौन एनोड है, और हम सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पहले हम आपको सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन दिया रहेगा तो उस सेल रिएक्शन से हम सेल रिप्रेजेंट करेंगे। आपको मालूम है लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको हम रखे लेफ्ट में। मेटल सॉलिड, ये सिंगल लाइन है, ये है सॉलिड लिक्विड बाउंड्री। M है सॉलिड, Mn प्लस
है सॉल्यूशन में, इसको इंडिकेट करते हैं सिंगल लाइन से। और ये पैरेलल लाइन, ये है सॉल्ट ब्रिज, ये ब्रिज देख रहे हैं आप, इसके बारे में बताएंगे आपके हम लोग को, ये सॉल्ट ब्रिज। और फिर ये एन एम प्लस एक्वस एन सॉलिड, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। ऐसे हम सेल रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सेल दिया रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख लेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको लिख देंगे लेफ्ट में। लेफ्ट क्या नियम है, मेटल तब मेटल आयन बीच में सिंगल लाइन सॉलिड लिक्विड बाउंड्री के लिए, राइट में पहले आयन तब मेटल और बीच में ये पैरेलल लाइन जो इंडिकेट करता है सॉल्ट ब्रिज को। ऐसे हम सेल रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रिएक्शन दिया है, उल्टा भी हो सकता है, समटाइम्स सेल रिप्रेजेंटेशन विल बी गिवन and you have to write the reaction, then also no problem. You know you have to write metal to metal ion at anode or metal ion to metal at cathode and then add the both. जो लेफ्ट में है उसका ऑक्सीडेशन करो, मेटल से मेटल आयन, मेटल लेफ्ट में मेटल आयन राइट में, और जो राइट में है इसका रिडक्शन करो, इसका आयन रहेगा लेफ्ट में और मेटल होगा राइट में। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो सीधे ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट है तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दीजिए। बोलिए सर, बीच में सर कटने लगा सर, एक दफा और रिपीट कर दीजिए ना। हाँ कोई बात। मैंने कहा कि दो काम है आपके पास। अगर सेल रिएक्शन दिया हुआ है उससे सेल रिप्रेजेंट करना है तो देख लो, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको लेफ्ट में लिखेंगे। लेफ्ट में नियम है पहले मेटल तब मेटल आयन, बीच में सिंगल लाइन, ये सॉलिड लिक्विड बाउंड्री को इंडिकेट करता है। जिसका रिडक्शन हुआ है उसको राइट में लिखेंगे, राइट में पहले मेटल आयन तब मेटल, ये कहता है कि मेटल से मेटल आयन बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कहता है कि मेटल आयन से मेटल बन रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और बीच में ये पैरेलल लाइन, इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। ऐसे हम रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा और आपको सेल रिएक्शन लिखने कहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हो जो लेफ्ट में है उस मेटल से मेटल आयन बना है, इस मेटल को लेफ्ट लिखेंगे, आयन को राइट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेंगे। राइट में मेटल आयन पहले लिखेंगे और मेटल बाद में लिखेंगे, इसमें बैलेंस कर लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। सेल रिएक्शन से सेल हो जाएगा, सेल से सेल रिएक्शन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं। एग्जांपल है Zn सॉलिड Zn2 प्लस एक्वस सिल्वर प्लस एक्वस सिल्वर सॉलिड। ऐसे है सेल रिप्रेजेंटेशन। और आपसे कहता है कि इससे सेल रिएक्शन लिखो, तो आप पहले अपने मन में सर्टेन करिए यहाँ क्या हुआ है। जिंक से Zinc2 प्लस ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ क्या हुआ, Ag प्लस से Ag मतलब रिडक्शन हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे जिंक सॉलिड से Zinc2 प्लस एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस है इधर 0 है, 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज बैलेंस कर। राइट में Ag प्लस से Ag हुआ है, मेटल आयन से मेटल बना, रिडक्शन हुआ, लिखेंगे Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड। एक ही प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए जोड़ेंगे जब इसको, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है,
हमारे फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में आपने 11th बैलेंसिंग सीखा है, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होना चाहिए। टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर के संख्या से, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है तो नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे की संख्या से ऊपर, तो वो नीचे 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर 1 से गुना कर दिए और इसको जोड़ दिए। ये पूरा 1 है तो हो गया Zn 2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag। हमको लगता है इक्वेशन जोड़ने आता होगा आप लोगों को। बाएं को बाएं लिखते हैं, दाएं को दाएं लिखते हैं, और ये बराबर होगा Zn 2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉल्ट। तो इस तरह सेल रिप्रेजेंटेशन से हमने सेल रिएक्शन लिखा। इसी को उलट दो ना, ऐसा सेल रिएक्शन लिखा हुआ है, सॉरी यहां Zn सॉलिड था, सॉरी भाई, यहां जिंक सॉलिड था। अब ये सेल रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करना क्या करेंगे हम देखेंगे पहले क्या हुआ। यहाँ जिंक सॉलिड था, यहाँ जिंक आयन हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, इसको हम बाएं लिख देंगे। यहाँ सिल्वर आयन था या सिल्वर बन गया, रिडक्शन हो गया, इसको हम दाएं लिख देंगे, और बीच में ये सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत होगी? सेल रिएक्शन दिया रहेगा तो इस सेल बना लोगे, और सेल बना लोगे तो उससे सेल बना रहेगा तो उससे सेल रिएक्शन भी लिख लोगे। अब एक पॉइंट इसमें और है, वो पॉइंट है कि अगर ऐसा नहीं दिया हुआ हो, सिर्फ इलेक्ट्रोड का नाम दिया हुआ, कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड, तब आप सेल कैसे बनाएंगे? जब सिर्फ इलेक्ट्रोड दिया रहेगा, इस रूप में रिएक्शन नहीं दिया रहेगा, या इस रूप में सेल रिप्रेजेंट नहीं किया रहेगा, तब आप कैसे बनाइएगा? तब आप कैसे बनाइएगा बताइए? तब आपको पता करना होगा कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, और ये पता करेंगे आप कहां से? मालूम है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की चर्चा पिछले क्लास में हुई थी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। तो कॉमन सेंस की बात है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक है वो रिड्यूस होगा, मतलब वो कैथोड होगा। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो वो लेफ्ट होगा। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें क्या होगा? बाएं में एनोड होगा, दाएं में कैथोड होगा। एनोड निगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां होगा ऑक्सीडेशन। ये जानकर मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। यहां होगा रिडक्शन, यहां कौन रहेंगे? लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, और यहां कौन रहेंगे? हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। ये नॉट को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
तो जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है वह कैथोड बनाएगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लो है वह एनोड बनाएगा। कुछ न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया रहेगा, सवाल में परीक्षा में दिया ही रहेगा। वैसे अभी प्रैक्टिस के लिए आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर याद कर लेंगे आप समझ जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दो बातें हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया था। अभी एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, अदर बुक्स में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो कि अदर बुक्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है हर जगह, उसको अगर मानेंगे आप तो हर ऊपर वाला एनोड होगा, नीचे वाला कैथोड होगा। क्योंकि ऊपर वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में है, तो ये होगा हाई इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ये लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्सेप्ट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में उल्टा हो जाएगा, याद रखिए। या अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करना चाहते हो ओनली तो फिर उलट दो, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा, तो नीचे वाला हो जाएगा एनोड, ऊपर वाला हो जाएगा कैथोड। ये जो कि सारे बुक्स में और जगह ऐसे ही दिया हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करें। तो हमने यही लिखा, मोस्ट कन्वेंशनल जो मेथड है। अगर आपको अच्छा लगे एनसीईआरटी से तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कंसेप्ट उलट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में ऊपर वाला एनोड, नीचे वाला कैथोड। एनसीईआरटी में ऊपर वाला एनोड, नीचे वाला कैथोड, ठीक है। एनी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड। हाँ अभी आएंगे हम लोग, पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब पढ़ेंगे तो उसमें। एनी मोर क्वेश्चन किसी के मन में? नहीं है, चलिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं उसी पर, इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है। उससे पहले आज बात करेंगे ये सॉल्ट ब्रीच। देखिए क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, मेटल आयन बन गया। आफ्टर सम टाइम concentration of metal ion will increase, so those metal ions will not allow electron to flow. यहाँ बहुत सारे मेटल आयन बन गए, पॉजिटिव हो गए, इलेक्ट्रॉन का अभाव है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो जाने नहीं देगा। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, मेटल आयन कंज्यूम हो रहा है, मेटल बन रहा है, तो मेटल आयन कंज्यूम हो रहा है, खर्च हो गया, तो कॉपर 2+ था, कॉपर बन गया। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर से लेगा कौन? यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। कुछ समय के बाद आपका रिएक्शन बंद हो जाएगा। इसीलिए हम ये सॉल्ट ब्रिज लगाए। सॉल्ट ब्रिज विल मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यहाँ जब केटाइन बढ़ जाएगा तो कुछ एनाइन सप्लाई कर देगा, यहाँ जब एनाइन बढ़ जाएगा तो कुछ केटाइन सप्लाई कर देगा, और दोनों तरफ न्यूट्रल बनाए रहेगा तो सेल चलता रहेगा। सो सॉल्ट ब्रिज, salt breeze is a device which
maintains electrical neutrality. Electrical neutrality in an electrochemical cell. Salt bridge is a device which maintains electrical neutrality in an electrochemical cell. और दूसरा काम ये करता है, it completes internal circuit. ये बात मालूम है आप लोगों को? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है जब सर्किट कंप्लीट होता है। क्लोज सर्किट में, ओपन सर्किट में बिजली का फ्लो नहीं होता है। अगर आप देखे, घर में भी देखे होंगे, अगर दो तार को आप निकाल देंगे किसी सर्किट से, सीधे खाली रहेगा तो बिजली पास नहीं होगी। जब उसको जोड़ देते हैं तब बिजली पास होती है। तो अगर ये साल्ट ब्रिज नहीं हो, देखिए क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां पर आएगा, ओपन है तो बिजली पास नहीं होगी। अब इसको जोड़ दिया, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो दो काम है साल्ट ब्रिज का। टू फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। क्या सब फंक्शन है? टू मेंटेन electrical neutrality and complete internal circuit. सॉल्ट ब्रिज का दो फंक्शन है। क्या सब? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय सप्लाइंग अपोजिट आयन, और दूसरा कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट। इसमें हम सॉल्ट कौन यूज करेंगे? तो हम ऐसा सॉल्ट यूज करेंगे जिसके केटाइंस और एनाइंस का आयनिक मोबिलिटी सेम हो, दोनों सेम स्पीड से जा सके, इसको न्यूट्रलाइज कर सके। अगर मान स्पीड डिफरेंट है, इधर एनाइन ज्यादा आ गया, इधर केटाइन कम गया, फिर भी तो बैलेंस नहीं रहेगा। तो ऐसा साल्ट यूज करेंगे, कैसा यूज करेंगे बताइए? इन साल्ट ब्रिज mobility of both cations and anions must be same. एक एग्जांपल आप जानते होंगे, हो सकता है अमोनियम नाइट्रेट। Ammonium nitrate will break into ammonium plus and nitrate minus ions, and mobility of both ions are same, so ammonium nitrate is used in this salt. A simple एक pipe है filled with a salt, and that salt supplies opposite ions to both the electrode and maintains its electrical neutrality as well as completes internal circuit. Any more question? So in next class we shall study origin of electrode potential and then last equation. सर एक हाँ बोलिए। सर एक सॉल्यूशन थे सर, पूछिए। हाँ बोलो। हाँ Intermolecular attraction in a solution of alcohol and water. तो आपको मालूम है कि अल्कोहल एंड वाटर बोथ कंटेन intermolecular hydrogen bond. Yes sir. Water forms 4 intermolecular hydrogen bonds and alcohol forms only 3. So when alcohol is mixed in water or water is mixed in alcohol, the alcohol will decrease intermolecular force of water.
4 bonds will break or 3 bonds will be formed. So there will be some positive deviation when alcohol is added to water. Although both are forming, so effect will be very less,